કેમ છો બાળકો? હવે આપણે પાઠ છે બીજો. પહેલો પાઠ હતો ઇતની શક્તિ દેના હમે દાતા, જે પ્રાર્થના કાવ્ય હતું તે પૂર્ણ કર્યું. હવે ત્યાર પછી પાઠ 2 છે અનૂઠે ઇન્સાન, પ્રસંગ વર્ણન છે. હવે અનૂઠે ઇન્સાન એટલે કે અલગથીને જ વ્યક્તિ જે છે, બધાથી અલગ, તેનો પ્રસંગનું એક વર્ણન છે. તેનો પાઠ આપણે સ્વામાં, જે કોઈને બાકી રહી ગયો છે તેના માટે ફરીથીને આ વિડીયો છે. હવે તેમાં આપણને પ્રશ્નો આપેલા છે. એ પહેલો પ્રશ્ન છે, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर प्रश्न के सामने दिए गए જે બોક્સ આપેલું છે તેમાં મેં લીખીએ. હવે જે વિકલ્પો છે તેના જેના જવાબ છે, તો એક વિકલ્પના 4 જવાબ આપેલા છે, A, B, C અને D. તેમાંથીને જે એનો સાચો જવાબ આવતો હોય તે આપણે તેના બોક્સમાં લખવાનો રહેશે. પછી એમાં પહેલો પ્રશ્ન છે, नेपोलियन अपनी बहन के साथ कौन सा खेल खेल रहा था? नेपोलियन છે, नेपोलियन अपनी बहन के साथ कौन सा खेल खेल रहा था? नेपोलियन છે તેની બહેનની સાથે કઈ રમત રમતો હતો? તો એમાં આવશે બી, આંખ મેં ચોલી. પછી એમાં જ વિકલ્પ બીજો છે, नेपोलियन ने लड़की को क्या दिया? નેપોલિયન છે તે જે બાળકી છે તેને શું આપ્યું? તો એમાં એનો જવાબ આવશે 3 સિક્કે. नेपोलियन ने लड़की को 3 सिक्के दिए. એમાં આવશે બી, બીજામાં આવશે બી. ત્યાર પછી नेपोलियन कैसा इंसान था? तो नेपोलियन अनूठा इंसान था. ત્યાર પછી પ્રશ્ન ચોથો છે, कौमुदी के पिता किसकी नीलामी करा रहे थे? કૌમુદીના પિતા છે એ શેની નીલામી કરાવતા હતા? તો એમાં જોઈએ પછી ने कौमुदी के पिता किसकी नीलामी कर रहा था? तो कि कौमुदी के पिता आभूषणों की नीलामी करा रहा था. હવે ત્યાર પછી છે તેમાં જોઈએ कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए. તો એમાં જે કાઉન્સમાં પ્રશ્નની નીચે જે કાઉન્સ આપેલા છે તે કાઉન્સમાં બધા પ્રશ્નો જે એના જવાબ શબ્દ આપેલા છે તેમાંથી એનો જે સાચો શબ્દ છે એ ગોતી અને લખવાનો રહેશે. તો એમાં આપણને પહેલો પ્રશ્ન છે, તેમાં છે પહેલું છે, नेपोलियन जब छोटा था तभी से वह खाली जगह था. तो कि नेपोलियन जब छोटा था तभी से वह सत्यवादी था. તો એ પહેલામાં આવશે શબ્દ સત્યવાદી. પછી છે બીજો શબ્દ लड़की खाली जगह बेचने के लिए जा रही थी. લડકી છે તે શું વેચવા માટે જાતી હતી? તો કે અમૃત. તે અમૃત બેચને કે લીએ જા રહી થી. તો એમાં બીજામાં શબ્દ આવશે અમૃત. ત્યાર પછીનો ત્રીજો છે પ્રશ્ન, તેમાં જોઈએ नेपोलियन के टकराने से
ઉચકી. ખાલી જગ્યા નીચે ગીર પડી. તો એમાં શબ્દ આવશે ટોકરી. ટોકરી નીચે ગીર પડી. ત્યાર પછી 4 પ્રશ્નોમાં જુઓ 4 નંબરમાં બચપન સે હી ઉસે ખુદ પર ખાલી જગ્યા વિશ્વાસ થા. તો એમાં આવશે દ્રઢ. દ્રઢ વિશ્વાસ થા. 5મો ખાલી જગ્યા વહાં ખાલી જગ્યા નામ કે ગાँव में सभा का आयोजन किया गया. તો કે બટગરા. શબ્દ આવશે બટગરા ગાँव. તો ગાँव में सभा का आयोजन किया गया. 6ઠી ખાલી જગ્યા છે गांधी ने उपस्थित बहनों से खाली जगह की भीख मांगी. તો એમાં આવશે ઝેવરો. તો કે ઝેવરો કી ભીખ માંગી. પછી એમાં આવશે ગાંધીજી ને ખાલી જગ્યા સે કહા. તો એમાં શબ્દ આવશે કૌમુદી. કૌમુદી સે કહા. 8મો ખાલી જગ્યા છે ખાલી જગ્યા સે બઢકર કુછ નહીં. તો એમાં આવશે દેશ પ્રેમ. દેશ પ્રેમ સે બઢકર કુછ નહીં. ત્યાર પછી પ્રશ્ન 3જો છે સહી વાક્ય ચુનકર વિધાનો કો પૂર્ણ કીજીએ. તેમાં જે સાચું વાક્ય આવતું હોય તો એને એમાં પૂર્ણ કરવાનું છે ગોતીને. હવે એમાં પહેલું આપેલું છે વાક્ય. તેમાં છે લડકી કો ડર થા કી. તો એમાં અ બ ક જે આવશે તે આપણે પહેલાં જોઈ લેવું. તેમાં આવશે ક. વહાં માँ को क्या जवाब देगी. लड़की को डर था कि वह माँ को क्या जवाब देगी. તો એમાં આવશે ક. પહેલામાં આવશે ક. બીજો છે નેપોલિયન ભાગા નહીં ક્યોંકि. નેપોલિયન છે તે ભાગ્યો નહીં શું કામે. वह लड़की को जो हानि हुई थी उसे भरपाई करना चाहता था. वह लड़की को जो हानि हुई थी उसे भरपाई करना चाहता था. એમાં આવશે અ. પ્રશ્ન 3જો છે माँ नेपोलियन से खुश हुई क्योंकि. હવે માં છે તે નેપોલિયનથી ખુશ हुई क्यों. તો એમાં આવશે બ. उसने माँ को सच सच बता दिया था. उसने माँ को सच सच बता दिया था. તો એમાં આવશે બ. પછી પ્રશ્ન નંબર છે 4. તેમાં ભાષણ સમાપ્ત કર ગાંધીજી. ભાષણ સમાપ્ત કર ગાંધીજી. તો એમાં આવશે ભેટ મેં મિલી વસ્તુએ નીલામી કરને લગે. ભેટમાં જે મળેલી હતી વસ્તુઓ તેની નીલામી કરવા લાગ્યા. હવે ત્યાર પછીનો પ્રશ્ન છે પાના નંબર 13 ઉપર 5મો છે પ્રશ્ન. એમાં છે ગાંધીજીને કૌમુદી કે. ગાંધીજીને કૌમુદી કે. તો એમાં આવશે સાહસ કો સચ્ચા આભૂષણ બતાયા. યા એમાં આવશે બ. त्याग को सच्चा आभूषण बताया. પછી એમાં આવશે પ્રશ્ન 4 છે તેમાં નિમ્નલિખિત પ્રશ્નો કે ઉત્તર એક એક વાક્ય में लिखिए. એક એક વાક્યમાં પ્રશ્નના જવાબ છે તે લખવાના રહેશે. તેમાં આપણને કુલ પ્રશ્નો 12 આપેલા છે. તેમાં આપણે જોશું પહેલો પ્રશ્ન છે
नेपोलियन किससे टकराया? प्रश्न છે નેપોલિયન કિસસે ટકરાયા? તો એમાં જવાબ જોશું નેપોલિયન अमृत बेचने वाली लड़की से टकराया। नेपोलियन अमृत बेचने वाली लड़की से टकराया। ત્યાર પછીનો પ્રશ્ન બીજો પ્રશ્ન છે अमरूदों के खराब हो जाने का क्या कारण था? अमरूदों के खराब हो जाने का क्या कारण था? तो एनो जवाब लखशुं अमरूद कीचड़ में गिर जाने के कारण खराब हो गए थे। अमरूद कीचड़ में गिर जाने के कारण खराब हो गए थे। ત્યાર પછી પ્રશ્ન આવશે 3 નંબર. તેમાં જોશું प्रश्न ત્રીજો છે इलाइजा अमृत वाली लड़की को घर ले जाने का विरोध क्यों कर रही थी? इलाइजा अमृत वाली लड़की को घर ले जाने का विरोध क्यों कर रही थी? तेनो जवाब आवशे इलाइजा अमृत बेचने वाली को घर ले जाने का विरोध कर रही थी क्योंकि उसे माँ के नाराज हो जाने का डर था। उसे माँ के नाराज हो जाने का डर था, इसीलिए वो विरोध कर रही थी। ત્યાર પછી પ્રશ્ન છે 4 નંબર. તેમાં જો नेपोलियन कैसा इंसान था? नेपोलियन कैसा इंसान था? तो एनो जवाब आवशे नेपोलियन सच्चाई के पथ पर चलने वाला एक लड़का था। नेपोलियन सच्चाई के पथ पर चलने वाला एक लड़का था। ત્યાર પછી પ્રશ્ન છે 5. તેમાં જોશું આપણે बटगरा गांव किस राज्य में है? बटगरा गांव किस राज्य में है? तो एमां जोशुं आपणे बटगरा गांव केरल राज्य में है। बटगरा गांव केरल राज्य में है। ત્યાર પછી પ્રશ્ન છે 6. कौमुदी ने गांधी जी को भेंट में क्या क्या दिया? कौमुदी ने गांधी जी को भेंट में क्या क्या दिया? तो एमां हवे एनो जवाब आवशे कौमुदी ने गांधी जी को भेंट में अपने हाथों की सोने की चूड़ियाँ, गले का हार, गले का स्वर्ण हार और कानों की रत्न भरे बूंदे दिए। फरीथी जवाब बोली जाऊँ छूं छठानो. कौमुदी ने गांधी जी को भेंट में अपने हाथों की सोने की चूड़ियाँ, गले का स्वर्ण हार और कानों की रत्न भरे बूंदे दिए. ત્યાર પછી પ્રશ્ન છે 7. 7મો પ્રશ્ન છે कौमुदी ने अपने कीमती गहने गांधी जी को क्यों दे दिए? कौमुदी ने अपने कीमती गहने गांधी जी को क्यों दे दिए? तो एनो जवाब थशे कौमुदी ने अपने कीमती गहने गांधी जी को दे दिए क्योंकि उसकी दृष्टि में देश
देश का महत्व था। उनकी दृष्टि में देश का महत्व था। હવે ત્યાર પછી છે 8મો પ્રશ્ન છે, તેમાં જોશું नेपोलियन की बहन का नाम क्या था। नेपोलियन की बहन का नाम क्या था। એનો જવાબ છે नेपोलियन की बहन का नाम इलाइजा था। नेपोलियन की बहन का नाम इलाइजा था। ત્યાર પછીનો પ્રશ્ન છે 9, नेपोलियन लड़की को अपने घर क्यों ले गया। नेपोलियन છે તે लड़की को अपने घर क्यों ले गया। તો એનો જવાબ થશે लड़की ने अमृत खराब हो गए। लड़की के अमृत खराब हो जाने से उसे नुकसान हुआ था। नेपोलियन माँ से पैसे दिलाकर इससे गुस्सा न पूरा कर खा जा। હવે જો એમાં એમ કહે છે वह चाहता था इसलिए वो लड़की को अपने घर ले गया। હવે એમાં જવાબમાં ફરીથી કહે છે कि लड़की के अमृत खराब हो जाने से उसे नुकसान हुआ था। नेपोलियन माँ से पैसे दिलाकर इसका नुकसान पूरा करवाना चाहता था, इसलिए वो लड़की को अपने साथ घर ले गया। હવે ત્યાર પછીનો પ્રશ્ન છે 10 નંબર। 10મા પ્રશ્નમાં આપણે જોશું कि गांधी जी को सोने की चूड़ी देने वाली लड़की का नाम क्या था। गांधी जी को सोने की चूड़ी देने वाली लड़की का नाम क्या था। तो એનો જવાબ છે गांधी जी को सोने की चूड़ी देने वाली लड़की का नाम कौमुदी था। ત્યાર પછીનો પ્રશ્ન છે 11, गांधी जी ने कौमुदी से क्या कहा। गांधी जी ने कौमुदी से क्या कहा। तो कि गांधी जी ने कौमुदी से कहा तुम्हें दोनों चूड़ियाँ देने की ज़रूरत नहीं है, एक ही चूड़ी लेकर मैं तुम्हें अपने हस्ताक्षर दे दूँगा। फरीथी जवाब गांधी जी ने कौमुदी से कहा तुम्हें दोनों चूड़ियाँ देने की ज़रूरत नहीं है, एक ही चूड़ी के लेकर मैं तुम्हें अपना हस्ताक्षर दे दूँगा। ત્યાર પછીનો પ્રશ્ન છે ત્યાર પછીનો પ્રશ્ન છે हस्ताक्षर करने के बाद गांधी जी ने क्या लिखा। हस्ताक्षर करने के बाद गांधी जी ने क्या लिखा। तो एनो जवाब है हस्ताक्षर करने के बाद गांधी जी ने लिखा तुम्हारे इन आभूषणों की अपेक्षा तुम्हारा त्याग ही सच्चा आभूषण है। हस्ताक्षर करने के बाद गांधी जी ने लिखा तुम्हारे इन आभूषणों की अपेक्षा तुम्हारा त्याग ही सच्चा आभूषण है। ત્યાર પછીનો પ્રશ્ન છે તે પાના નંબર 14 ઉપર છે, મોટા પ્રશ્નો છે વિસ્તારવાળા, તે જોશું। હવે એમાં પ્રશ્ન છે પહેલો, 5મા પ્રશ્નમાં પહેલો, बापू धन क्यों इकट्ठा कर रहे थे। बापू
धन इकट्ठा क्यों कर रहे थे? तेनो जवाब है, उस समय देश में आज़ादी के लिए आंदोलन चल रहा था। उस समय देश की आज़ादी के लिए आंदोलन चल रहा था। बापू उसके नेता थे। बापू उसके नेता थे। आंदोलन के लिए धन की ज़रूरत पड़ती थी। आंदोलन के लिए धन की ज़रूरत पड़ रही थी। बापू यह धन कहाँ से लाते? इसलिए वे सारे देश में घूम घूम कर सभाएं करते थे और धन इकट्ठा करते थे। ત્યાર પછીનો પ્રશ્ન છે 2. ત્યાર પછીનો પ્રશ્ન બીજો છે. પછી છે પ્રશ્ન બીજો. ત્રીજા પ્રશ્નમાં જોશું. नेपोलियन को सच बोलने का क्या परिणाम भुगतना पड़ा? नेपोलियन को सच बोलने का क्या परिणाम भुगतना पड़ा? તો એમાં જોશું अमृत बेचने वाली लड़की को हानि उठानी पड़ी थी। उस लड़की को डर है कि उसकी माँ उसे बुरी तरह से डांट देगी। अपनी जेब खर्ची की रकम में से उसे लड़की को अमृतों के पूरे पैसे देने के लिए नेपोलियन ने माँ से कहा। माँ नेपोलियन की सच्चाई से बहुत खुश हुई। उसने नेपोलियन से कहा कि अब 1 महीने तक उसे जेब खर्ची उसे जेब खर्ची के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा। नेपोलियन ने माँ की बात मान ली। उसने अपने सच बोलने के परिणाम को खुशी खुशी भुगत लिया। ત્યાર પછીનો પ્રશ્ન આપણે જોશું. પ્રશ્ન નંબર 3. એમાં છે કૌમુદી कौन थी? उसने अपने देश प्रेम का परिचय किस प्रकार दिया? तो एमा जोशू कौमुदी केरल के बडगरा गांव की बालिका थी। बडगरा गांव में धन इकट्ठा करने के लिए गांधी जी सभा का आयोजन किया था। सभा में भाषण के बाद गांधी जी ने उपस्थित महिलाओं से उसके गहने मांगे।
बहुत सी महिलाओं ने अपने गहने गांधी जी को भेंट कर दिए। उस समय 16 वर्ष की कौमुदी गांधी जी के पास आई। उसने गांधी जी को अपने हस्ताक्षर मांगे। हस्ताक्षर के बदले में अपने दोनों हाथों की चूड़ियाँ, गले का स्वर्ण हार और कानों की रत्न जड़े बूंदियाँ दे दी। ત્યાર પછી પ્રશ્ન છે 4। પ્રશ્ન 4માં આપણે જોશું, तुम अपने देश की सेवा कैसे करोगे? તો શિક્ષક છે એ વિદ્યાર્થીને પૂછે છે અને સ્વતંત્ર તેનો જવાબ આપે છે। તો કહે છે, शिक्षक कहे छे विद्यार्थियों से, तुम लोग महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री आदि की सेवा के बारे में जानते हो, लेकिन तुम खुद देश की सेवा कैसे करोगे? तो अशुमन गुरुजी से खुशी वैज्ञानिक बनूंगा, खेती करके तरह तरह के अनाजों को उत्पादन करने, अनाज पैदा कर कर बाग बढ़ाऊंगा। कौशल कहे छे, गुरुजी मैं देश के फैले हुए भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाऊंगा। उसे उखाड़ कर फेंक देने का इरादा रखता हूँ। इसके लिए जो भी हो सकेगा मैं ईमानदारी से करूँगा। प्रश्न छे पाना नंबर 15 ऊपर। शिक्षक कहे छे, मुझे खुशी है कि तुम लोग किसी न किसी तरह से सेवा करना चाहते हो। भविष्य में तुम्हारे हाथों में मेरे देश की बागडोर होगी। मुझे विश्वास है कि तुम लोग सच्चे देश सेवक बनोगे। ત્યાર પછી પ્રશ્ન છે 5। 5મા પ્રશ્નમાં इंसान अनूठा कब कहलाता है? तो शिक्षक कहे छे कि मेहनत क्या तुम बता सकते हो? महेश, क्या तुम बता सकते हो कि इंसान अनूठा क्यों कहलाता है? महेश, गुरुजी, जब अच्छा काम करता है तब वह अनूठा इंसान कहलाता है। जब वह असाधारण काम करता है तब वह अनूठा इंसान कहलाता है। जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल। शिक्षक, तुम्हें पता है उन्होंने क्या नया काम किया था? महेश के, गुरुजी, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तब लगभग 60 वर्ष के पहले सरदार पटेल ने बड़ी कुशलता से सभी राजाओं से उनकी सेना, सवेली और राष्ट्र का निर्माण किया। शिक्षक के, हाँ, सरदार पटेल लोखंडी इरादों के आदमी थे। सचमुच में अनूठे इंसान है। तेना इरादा पण छे ते लोखंडी हता। त्यार पछी प्रश्न छे 6। अपने गांव में घटी कोई आंखों देखी घटना के बारे में लिखिए। तो एमां एम कहे छे कि तमारा आंखों देखी कांई पण घटना बनेली होय तो ई घटना छे ई तमारा शब्दोमां तमारे लखवानी रहेशे। बधाए लखेली तो छे ज, कोईने बाकी रही गई होय तो आमांथी ने जोईने लखी लई, नकर PDF मांथी ने ज्यारे मोकलाववामां आवे त्यारे लखी लई अने जे अधूरा प्रश्न छे ते पण पूरा करी लई।
જે આપણને પ્રશ્નો આપેલા હતા તે આપણે ફરીથી ને પ્રશ્ન 1 થી 6 લીધેલા છે. ત્યાર પછીના પ્રશ્નો આપણે આવશે જે 8 થી 11 પ્રશ્નો છે અને વિસ્તારથી એક વાર્તા પણ લખવાની રહેશે અને પ્રવૃત્તિઓમાં જે બાકી હોય તે પણ પૂરું કરાવીશ. તે આના પછીના આપણે વિડીયો લેક્ચરમાં ભણીશું. હરિઓમ.